Hello everyone, how are you? Fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I'm also fine, thank you. Students, I welcome you in this session. Today we will discuss on the writing part, writing junctions. Okay? आज की हमारी टॉपिक है चैप्टर Yes, फर्स्ट की राइटिंग जंक्शंस. ओके? yes, ma'am. क्या आपने बुक से पहले से राइटिंग जंक्शन पार्ट पढ़ा? Yes, ma'am. Have you Yes, ma'am. this topic? Yes, ma'am. Okay, so let's begin. If you have any problem, you can ask to me. Okay? Yes, ma'am. Okay, हमारी आज की टॉपिक है राइटिंग जंक्शंस. ओके? In this topic, Yes, we will learn about the narrative writing. Okay? आज की टॉपिक में Yes. narrative writing. Can you guess what is narrative writing? Narrative is a word that is made from narrate. What do you mean by narrate? Well, describe. Narrate means describe करना, वर्णन करना. Okay? तो हम Yes, आज की टॉपिक में पढ़ेंगे narrative writing. मतलब if you want to narrate any story, any essay, so what is the important facts of this? Okay? narrative writing के important facts क्या होते हैं और narrative writing है क्या? तो narrative writing क्या होती है? It is a part of writing. Writing का एक part है and we can use it for narrate the story. If we want to narrate the essay, any events, कह सकते हैं part of drama, part of any experience. मतलब कोई भी अगर हम narrate करना चाहे, वर्णन करना चाहे तो होता है narrative writing. Okay? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, We ma'am. will start by the lines of the story. Look carefully. For weeks, a new Vivek Roadmaster had stood in the window of the biggest store on Main Street. Now, on the final gala night on the story fair, it was to be raffled off. After watching the fireworks, I stayed in the shadows at the edges of the throng for the climax. Dragged into the bunting on the special platform, the baby glittered under the dozen spotlights. The crowd held its breath as the mayor reached into the glass bowl for the tickets. You're looking at that many phrases are highlighted. Highlighted है many phrases. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which phrases are highlighted? It was to be raffled off, है ना? After watching the fireworks, I stayed in the shadows. तो ये phrases जो है, it denotes that मतलब ये phrases का यूज किया गया है कि यहाँ पे कोई चीज नरेट हो रहा है. जैसे on the final gala night. Gala night means फेयर है ना? ये एक उत्सव वाली रात थी, है ना? तो इससे ये सीख है कि यहाँ पे नरेटर वांट्स टू नरेट द नाइट ऑफ द फेस्टिवल, है ना? क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या है? नरेटिव फ्रेसेस हैं. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? इट वाज टू बी रैफल्ड ऑफ. मतलब अब इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं कि ये गाला नाइट है, इसके बाद क्या होता है? इट वाज टू बी रैफल्ड ऑफ. रैफल्ड ऑफ मीन्स मतलब लॉटरी टिकट का आयोजन किया गया था ना? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट इवेंट क्या बताया गया कि यहाँ पे लॉटरी टिकट का भी आयोजन था. ओके? नेक्स्ट क्या है? आफ्टर वाचिंग द फायरवर्क्स, मतलब फायरवर्क्स का जो एडवेंचर रखा गया था ना, फायरवर्क के एडवेंचर के बाद, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो चीजें हुई है. मतलब it is the in by this passage the narrator wants to describe the story of his winning the Vivek, है ना? किस तरीके से Yes. को जीता था, स्टोरी बताई जा रही है ना यहाँ पे. Yes, ma'am. तो यहाँ पे स्टेप
स्टेप बाय स्टेप कई कई फ्रेसेस रखे हैं ये बताने के लिए कि कौन सी घटना कैसी हुई थी, किसके बाद क्या हुआ था। अंडरस्टूड? Yes. तो यही होता है आपका नैरेटिव। ओके, नेक्स्ट आपका है वी यूज नैरेटिव पैराग्राफ्स टू टेल द स्टोरीज। जैसे आपको अभी पहले मैंने बताया कि हम नैरेटिव पैराग्राफ्स यूज करते हैं इफ वी वांट टू नरेट द स्टोरी, प्ले, एनी पार्ट, एनी इवेंट्स। ओके, Yes, a story has events in the old order in which they occur। और कोई भी स्टोरी में जो फ्रेसेस होते हैं वो क्या ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर मीन्स क्रमबद्ध, मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना। कौन सी घटना पहले हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, है ना। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर में रखते हैं। एंड नैरेटिव इज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी। और नैरेटिव जो है ये भी बताती है कि जो रीडर्स होते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ा ना, द नाइट वी वन द विवेक, है ना। Yes, ma'am. और आफ्टर रीडिंग द स्टोरी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स फॉर दिस स्टोरी। हम सभी के अलग अलग एटीट्यूड्स है ना स्टोरी के बारे में। सबने इसको अपने अपने नजरिए से सीखा, है ना। Yes, ma'am. तो ये नैरेटिव जो है वो स्टोरी के बारे में जो रीडर्स हैं उनकी जो पर्सपेक्टिव में उनके जो एटीट्यूड्स होते हैं वो बताता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, ओके मैं पूछ रही हूँ अभिषेक, Yes. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टोरी द नाइट वी वन द विवेक? इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या विचार, स्टोरी कैसी थी? I think the story was based on the aphorism that if you build a character, you have the better part of the wealth. Find that there is a moral, है ना। Yes, ma'am. Okay, Muskan, according to you, can you tell me what do you think about this story? Ma'am, I think in this story there was a education that if we have the better character, that means we have better part of wealth. Okay, मतलब anybody else? ओके, तो हमने देखा यहाँ पे आपको मोरल मिलता है, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव्स होते हैं, नैरेटिव स्टोरी जो होती है, इसमें भी क्या होता है, मोरल्स होते हैं। ओके, मतलब ये क्या Yes, दिखाता है, राइटर्स के, ये जो रीडर्स हैं उनके एटीट्यूड्स वो अपने तरीके से स्टोरी के बारे में सोचते हैं। ओके, सो हियर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग अ नैरेटिव। यहाँ पे कुछ चीजें आपको है दिखाई जाएंगी जिससे आप ये देखोगे कि हम नैरेटिव स्टोरी कैसे राइट करें। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट द फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइड द स्टोरी यू वांट टू टेल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वो ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी स्टोरी कहने जा रहे हैं। ओके, Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डिसाइड द थिंग्स कि कौन सी स्टोरी या कौन सा इवेंट हम कहने जा रहे हैं, किस चीज का हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ओके, Yes, ma'am. understood? Yes, ma'am. The next point is know the times boundaries of the story. सेकंड पे आता है कि टाइम बाउंड्रीज क्या है, मतलब जो स्टोरी है या फिर जो इवेंट्स है वो किस टाइम पे अकर हुई है, व्हाट इज द टाइम। अगर हम अपनी स्टोरी द नाइट वी वन द विवेक की बात करें तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम बाउंड्रीज ऑफ दिस स्टोरी? If you want to say, you have to raise your hand. What is the time boundaries of this story? बेटा सभी हैंड रेज नहीं कर, सभी स्टोरी पढ़ चुके हो। स्टोरी जो है वो कब की टाइम की है?
ओनली अभिषेक एंड मुस्कान ने हैंड रेज किया है। बेटा सभी पार्टिसिपेट करिए, ओके। टॉपिक हमें कैसे पता चलेगा सभी को आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, टेल मुस्कान। And before the Second World War. इट इज टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Second World War. यही शायद Yes, ma'am. बच्चे है। तो ऐसे ही अगर हमें कोई भी स्टोरी नरेट करना है या कोई इंसिडेंट बताना है तो सबसे पहले हमें टाइम बाउंड्रीज भी इसमें याद रखना होगा कि किस समय की बात है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इट कैन बी अ सिंगल इवेंट। दूसरी चीज ये भी है कि स्टोरी में जो है इवेंट्स में Sir, घटना. ओके। तो इवेंट्स जो है Yes, ma'am. कभी कभी कोई स्टोरी होती है जिसमें सिंगल इवेंट्स ही होती है, किसी एक इवेंट्स को पूरी स्टोरी में डिस्क्राइब किया जाता है। ओके। Yes, या ma'am. फिर कोई स्टोरी होती है जिसमें एक डे के बारे में बताया जाए, मतलब पूरा दिन की एक पूरी स्टोरी हो। ओके। या फिर Yes, ma'am. स्टोरी होती है जिसमें फ्यू इयर्स की बातें बताई जाए, कुछ सालों तक की बात बताई जाए। अंडरस्टूड? तो ये Yes, ma'am. हमें पता है कि हम वट एवर वी वांट टू टेल, ओके, क्या हम कहना चाहते हैं, किस स्टोरी पे हम बताना चाहते हैं। ओके। Yes, ma'am. The third notable point is decide to purpose of the paragraph. ये में important points है कि कुछ भी हो, if you want to say something, if you want to describe anything, सबसे पहले गोल होना जरूरी है ना? कि हम जो भी नरेट करना चाह रहे हैं, what is the purpose of this story, events, accidents, okay? या फिर any Yes, moral. ma'am. तो अगर हम स्टोरी की बात करें, so what is the purpose of the story, the night given the Vivek? स्टोरी का पर्पज क्या है? थिंक एवरीवन, मैंने स्टोरी पूरी अच्छे से पढ़ी है। यू ऑल नीड टू टेल मी, रेज योर हैंड प्लीज। सिंपल सा पर्पज है इसका, सभी समझ में गए होंगे। इसका जो मोरल है वही इसका पर्पज है। आई थिंक आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, अभिषेक यू टेल। Ma'am, the purpose of the paragraph story was we should certify in what we have. So, if we have that we should satisfy whatever we have, है ना? ये भी हो Yes, सकता है, सही है। नेक्स्ट, what do you think, Muskan? Kavansu, what do you think, बेटा? Kavansu, बेटा की आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके अलका, what do you think, बेटा? Story. Utkarsh, you tell. What do you think? What is the purpose of the story, The Night We Won the Vivek? Ma'am, the purpose of story is Yes, Muskan. To spread the message that we should certify whatever we have, ये भी हो सकता है। या फिर to spread the message that if you have character, you have the better part of wealth, है ना? Understood? yes, ma'am. Okay. इस तरीके से आपका जो भी स्टोरी हो, जो भी आप नरेट कर रहे हो, तो इसका क्या होना चाहिए? पर्पज होना चाहिए। ओके। इट कैन बी समरी Yes, और कंक्लूजन और रिव्यू। अब यहाँ पे समरी मीन्स होता है कि स्टोरी को पूरा डिटेल में ना बताकर उसका जो मेन टॉपिक है इसको समराइज कर दिया जाए, सारांश। ओके। तो इस तरीके से भी आप Yes, वीडियो को, और कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन मीन्स कह सकते हैं एनालाइज करके उसका जो भी सही चीजें हैं और जो भी मतलब जो भी सही और गलत है उसको बताना। और रिव्यू मीन्स यही होता है इसका क्या करना, कमेंट करना, है ना? जैसे कि हर चीजें तो Yes, नहीं होती, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो फैक्ट होते हैं वो सब में होते हैं ना। तो इस तरीके से Yes, ma'am. आपकी भी स्टोरी के ये आपको भी अपनी स्टोरी में ये सब शामिल करना चाहिए। ओके। अगर हम इसकी बात करें द नाइट वी वन द विविक की, तो रिव्यू बताइए इसका, कमेंट्स क्या होगा, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट क्या होंगे?
Muskan asking, have you any problem? Have you any problem? बेटा सभी को सुनाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. Tell, Yes, ma'am. what is the positive and negative fact of the story, The Night We Won the Vivek? Think and answer, hurry up. प्राची, you tell. मतलब क्या चीज इसमें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी? Matter. Yes, tell. The negative review of the story was sometime when the narrator goes to market, he assumed to go with the bargain. And the positive review of the story was his father want to buy a car for his family, but his boss not give the car to him. ओके, जहाँ पे हमने देखा कि जो नरेटर है वो जब कभी भी जिद करता है तो इस तरीके से क्या होता है कि वो ही इज बॉदरिंग हिज फैमिली, परेशान करता है ना, मतलब वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझ रहा है। लेकिन दूसरी चीज का मतलब इसका यही नेगेटिव था। पॉजिटिव में क्या हुआ कि किस तरीके से वो उसकी जो फैमिली है ना, उसको मोरल एजुकेशन का एक तरीके से शिक्षा दे रही है ना, कि इफ यू हैव करेक्टर यू हैव बेटर पार्ट ऑफ वेल्थ, है ना। ये पॉजिटिव कैसे से मैसेज है जो जिससे हम सभी सीखते हैं, है ना। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आपका है डिटरमाइन द प्लॉट पॉइंट एंड देयर अरेंजमेंट। दूसरी चीज में क्या रिमाइंड करना होता है, डिटरमाइन द प्लॉट पॉइंट। प्लॉट में होता है जगह, ओके, कि स्टोरी जो है या फिर जो है वो किस जगह पे घटित हुई है, ओके, व्हाट इज द प्लेस। समझ में आई बात? Yes, आपकी स्टोरी में कौन सा प्लॉट पॉइंट है? द टाउन ऑफ न्यूयॉर्क ना? yes, जगह Yes, ma'am. थी। yes, ओके, नेक्स्ट आपका यूज ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, लेटर, अंटिल एक्सेट्रा टू कनेक्ट स्टूडेंट्स सॉरी सेंटेंसेस एंड आइडियाज। ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं यूज टू लिंक द फ्रेसेस एंड सेंटेंसेस। मतलब ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। लिंक मीन्स जोड़ना होता है ना। yes, ये हेल्प करती है रीडर्स को एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक पहुंचने में। जैसे हमने बोला आफ्टर, लास्ट, अंटिल, लेटर, है ना। जब कोई चीज हम डिस्क्राइब करते हैं तो इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। अंडरस्टूड? आप इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हो, समझ में आ रहा है सभी को? yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड देयर बैकग्राउंड। अब ये भी चीज आपके लिए मायने रखती है कि पूरी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए हमने जो चीज को तैयार किया है वो इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक पहुंचे, ओके, एंड बैकग्राउंड अच्छा हो। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थी स्टोरी में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या थी द नाइट वी वन द विवेक में? क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी कि हाँ ये जरूरी था बताना, दिखाना? When in the field the lottery was held. Okay, anybody else? मुस्कान, have you any problem बेटा? ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि मतलब रीडर्स तक ये पहुंचाना कि किस तरीके से प्रॉब्लम को शफल करके भी पेशेंस, जो उनकी फैमिली थी, मतलब जो पुअर फैमिली थी, वो पेशेंस रखकर काम करती थी, है ना। हम इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं पेशेंस रखकर, ओके, है ना। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. स्टोरी में बैकग्राउंड क्या था? कैन टेल मी? मदर किस तरीके से रूम को डेकोरेट करती है ना, यूजिंग द चिंस क्लॉथ, है ना।
Yes, ma'am. Okay. Next, use vivid verbs, adjectives and adverbs. कोई भी जो हम नरेट करने जा रहे हैं उसमें क्या विविड वर्ब होते हैं जो कि आपके वर्ब को ज्यादा ब्राइट बनाते हैं, मतलब जिस तरीके से कहते हैं एडवर्ब के जैसा काम करते हैं. ओके. Yes, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब सबको पता है. इट्स इनहैंस द क्वालिटी ऑफ द पैसेज, है ना, सेंटेंस. yes, ma'am. अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज करे, एडवर्ब यूज करे, तो इससे आपका जो टॉपिक है वो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है ना. अंडरस्टूड? अभी तक आवाज जा रही है? ओके. नेक्स्ट, देन अ क्वेश्चन फॉर यू. आप सभी को करना क्या है? राइट द नैरेटिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी. बेटा आप सभी तक आवाज क्लियर जा रही है? Yes, ma'am. क्वेश्चन आप सभी को ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना? राइट द नैरेटिव पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट सीन फ्रॉम माय मूवी. अभी आपने पढ़ा व्हाट इज द रूल्स ऑफ नैरेटिव, है ना? Yes, आपने देखा सारे रूल्स? yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. तो remind these notes, notable points, and using these notable points, you have to narrate the scene of any movie. कोई मूवी जो आपको अच्छी लगे, ओके? उसका कोई भी सीन आपको इस तरीके से नैरेटिव पैराग्राफ के तरीके से यूज करना है. नैरेटिव जो पॉइंट्स है वो यूज करते हुए. विल यू डू इट? Yes, ma'am. सभी कर लेंगे? Yes, ma'am. बेटा यू हैव टू गिव दिस आंसर इन द गूगल क्लासरूम. ओके? Yes, ma'am. आकृति समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. तो आपका ये जो राइटिंग जंक्शन टॉपिक है ये एंड होता है. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रामर स्टेशन. ग्रामर स्टेशन जो है ये आपका ग्रामर जंक्शन का ही एक सेकंड पार्ट है. ग्रामर जंक्शन में आप पढ़ चुके हो आई थिंक. क्या पढ़ा था हमने ग्रामर जंक्शन में? कैन यू टेल मी? Ma'am, conditional sentences. Conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू टेल मी व्हाट आर कंडीशनल्स? Yes, ma'am. चल. Conditional sentences are condition which show conditions that are true, unreal, and the hypothetical. Okay. What are the part of conditionals? And there are four parts of condition. What? And there are four parts of condition. Part. I'm asking part of conditionals. Ma'am, two part. Yes, two parts. What are the two parts? Yes, Ma'am, if clause and main clause. If clause and main clause. main clause. If clause consists with if clause किससे किससे बना होता है? बताइए. इफ कंजंक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट, है ना? Simple present. Okay. How many types of conditionals? Four. How many types of conditionals? Who will tell me? Yes, ma'am. Kavanshu, yes, tell beta. Yes, Kavanshu, tell. There are four types of conditionals. 4 types of conditionals. Can you name it? Tell me the name. Alka. Conditional, second conditional, Alka, tell beta. Ma'am, zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. 0 conditionals, first conditionals, second conditionals, and third conditionals. बेटा अभिषेक,
इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. ये करेक्ट सही है? Yes. Yes, ma'am. आदर्श यू टेल, ये सही है बेटा? Yes, ma'am. ओके, जीरो कंडीशंस में क्या होता है? शॉर्ट में आप रूल्स बताइए जीरो कंडीशंस के। मैम इसमें जो सेंटेंस होता है वो रेज योर हैंड बेटा, ताकि सबको टाइम मिले। यस मुस्कान। Ma'am, in first clause, there we use simple present, and in second clause we also use simple present, and it is general truth. General truth. Anybody else? same. Anybody else? Please hurry up. ग्रामर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से करने, इसमें कंडीशनल सी है, इसमें टॉपिक ये Yes. डिस्कस कर ले रही हूँ। आप लोग बुक्स देखेंगे एंड बुक से आपको इसको सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके सेंड करना रहेगा। ओके Yes, ma'am. बेटा बताइए, कौन बताएगा अभी? क्या मुस्कान सही बता रही है? Yes, ma'am. प्राची टेल। मतलब इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट Simple present. प्लस सिंपल प्रेजेंट। ओके, Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट व्हाट इज द रूल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल्स? Who will tell me? Raise your hand. Second conditional. What are the rules of second conditionals? Only Abhishek and Muskan. बेटा आप सभी को समझ में नहीं आया टॉपिक क्या? Yes, tell Abhishek. Ma'am, in the first conditional, we use simple present in the first sentence and simple future in the second. And it is it is based on imaginary. Okay. If plus simple present plus simple Simple present. फ्यूचर मीन्स विल का यूज करेंगे। ओके, नहीं तो था टॉपिक Yes, पे? Yes, ma'am. अंडरस्टूड और नॉट? Simple past. Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या था? व्हाट इज द रूल्स ऑफ थर्ड कंडीशनल? थिंक एंड आंसर। Kavanchu tell. Third rules of third conditionals. If plus past perfect tense. No, ma'am. Simple past. You tell Abhishek. Ma'am, Simple if past. conjunction if plus simple past plus Plus present conditional. present conditional. Present conditional. Would plus have plus है participle form of verb. participle form. तो Yes, ma'am. आप देखेंगे आपका जो ग्रामर स्टेशन है इसमें भी कंडीशनल सी है और एक्सरसाइजेस है, तो यू नीड टू कंप्लीट इट। ओके, कर लेंगे Yes. सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। आपकी टॉपिक फिनिश हो चुकी है। अभी आपकी बुक्स की एक्सरसाइजेस बच्चे हैं, वो भी आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ओके, Yes, ma'am. आप तक बुक्स की पीडीएफ शेयर नहीं किए गए हैं, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. राइटिंग जंक्शन टॉपिक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. एंड कंडीशनल्स, वोकैबुलरी पार्ट एंड प्रोनाउंसिएशन पार्ट सब क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ऑल द स्टूडेंट सभी को क्लियर है ना?
Yes, ma'am. अब नेक्स्ट सेशन में इसके साथ डिस्कशन किए जाएंगे. ओके Yes, ma'am. ओके, तो आज का सेशन में एंड करते हैं. टेक केयर एंड एंजॉय स्टडी. Thank you. Thank you, ma'am. ma'am.